Hi friends, I hope you are doing well. In the last video, we have discussed about the introduction part as well as the trigonometric ratios. We have completed all the examples of NCERT. Today we are going to proceed with the exercise 8.1. So the first question is, in triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. We have to determine the values of sine A, cos A, sine C and cos C. Again the same question with the same concept. Triangle ABC is given, B is 90 degree, 24 centimeter is the length of AB, whereas BC is 7 centimeter. First of all, let us find out the hypotenuse. Applying Pythagoras theorem in triangle ABC. You have to write all these things. First you have to write given, what is given, AB is, this is the quantities that are given. Then you have to proceed with the example in order to secure full marks. Applying Pythagoras theorem in triangle ABC, AC square is equals to AB square plus BC square. So AC square will remain same, AB square, that is 24 square plus 7 square. 24 square is 476, 7 square is 49, which is 625 square. Now the value of AC is equals to plus minus 25 centimeter. We will again neglect negative and take the value of AC as positive. So plus 25 centimeter is the value of AC. Now the first part is we have to find sine A cos A. Sine A is equals to perpendicular upon hypotenuse. A यहाँ पे है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हम बैठ जाएंगे. ये हमारा बेस हो जाएगा AB और BC हमारा क्या हो जाएगा, perpendicular. So BC is the perpendicular, hypotenuse will remain same AC. The value of BC is already given 7 and AC we have find it out, that is 25. Same question, second part, cos A. Cos A is base upon hypotenuse. Base is AB, hypotenuse is AC. AB is 24, AC is 25. So these are the answers of the first part. Now the second part is we have to find the values of sine C, cos C. Again what we are going to do is we are going to sit here. BC जो हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा यहाँ पे, जो एडिसेंट साइड है इस थीटा की, और जो AB हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज. सॉरी AC, AB जो आपका हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और AC तो आपका ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज है. तो साइन C क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB. Hypotenuse will remain same, that is AC. So AB upon AC, that is 24 upon 25. And the second part is cos C. Cos C में हम क्या करेंगे, base upon hypotenuse. यहाँ पे base क्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, या फिर मैं पहले लिख देता हूँ BC और hypotenuse हमारा सेम रहेगा AC. BC हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर और AC क्या है हमारा 25. This is how you are going to proceed with the question. Now ये second question है हमारी एक्सरसाइज का. आपको एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, राइट एंगल एट Q. फिगर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है, QR की वैल्यू नहीं दे रखी और PR की वैल्यू क्या दे रखी है, 13 सेंटीमीटर. सेम प्रोसीड करेंगे. पहले एक बार गिवन लिख लेते हैं. गिवन PQ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, PR is equals to 13 centimeter. Now applying Pythagoras theorem in triangle PQR. PR square is equals to PQ square plus QR square. This is our Pythagoras theorem. PR की वैल्यू हमें दे रखी है 13, इसका स्क्वायर. PQ की वैल्यू हमें 12 दे रखी है, इसका स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू हमें निकालनी है. 13 का स्क्वायर इज 169,
12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। ये आपका 25 हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ क्यू आर विल बी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें यूनिट सेंटीमीटर दे रखी है इसलिए हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं। अगर हमें मीटर दे रखी होती तो हम मीटर लिखते, अगर कुछ नहीं दे रखी होती तो हम क्या यूनिट्स में एज्यूम कर देते या फिर के साथ लिख देते कि एक हमारा रियल नंबर होता। अब हमें 10p निकालना है, पहले हम 10p निकाल लेते हैं। 10p के लिए हमारा थीटा यहाँ पे होगा और अगर थीटा यहाँ होगा तो हम यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे 10p निकालना है। 10p 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब थीटा हमारा यहाँ पे हो जाएगा तो पी क्यू हमारा बेस हो जाएगा, क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया क्यू आर, बेस क्या है हमारा पी क्यू। तो 10p की वैल्यू कैसे आएगी, क्यू आर की वैल्यू हम पुट करेंगे 5 और पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 12। सो दिस इज 10p। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट आर। कॉट आर के लिए हम क्या करेंगे, थीटा हमारा ये है, हम यहीं पे जाके बैठेंगे दोबारा। एडजेसेंट साइड जो हो जाएगी आपकी बेस हो जाएगी, दैट इज क्यू आर, और हमारी जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पी क्यू, दैट इज 12 सेंटीमीटर। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या है, इसमें क्यू आर है और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, पी क्यू है। सो क्यू आर की वैल्यू क्या आई हमारी 5 और पी क्यू की वैल्यू हमारी क्या आई 12। नाउ what we have to do is we have to find the value of 10p minus cot r। 10p हमारा क्या निकल के आया वहां पे 5/12 माइनस cot r हमारा क्या निकल के आया 5/12 अगेन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि ये वैसे ही जीरो हो जा रहे हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे हम प्रोसीड करेंगे। सो ये दो एग्जांपल बहुत इजी थे तो आपने इजी सॉल्व कर लिए, आगे भी ऐसी क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। अगर आप मेन कॉन्सेप्ट को थीटा अगर आपको कंसीडर करना आ जाए कि कहां पे बैठ के हमें परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना है, तो क्वेश्चन के साथ डील करना बहुत इजी हो जाता है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू एग्जांपल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। Let us now discuss question 3. If sin A is equals to 3/4, calculate cos A and tan A. लास्ट जो दो हमने क्वेश्चन करे हैं 1 and 2 उसी की तरह सिमिलर है। एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं ABC, ये आपका 90 डिग्री होगा। sin A की वैल्यू हमें दे दी 3/4 और sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा BC, तो ये आपका आ गया 3। हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका AC, ये आपका आ गया 4। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल ABC, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू हमें नहीं दे रखी तो हम एज इट इज लिख देते हैं, यही हमें फाइंड करनी है, प्लस BC का स्क्वायर दैट इज 3, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 9। 16 9 को इधर ले आएंगे, माइनस 9 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16 माइनस 9 इज 7, तो √7 हमारी AB की वैल्यू आ गई। इसको हम यूनिट्स लिख देते हैं क्योंकि हमें कुछ भी नहीं गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A। थीटा यहीं पर है अभी भी, ये बेस रहेगा, ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका AB, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC।
ए बी की वैल्यू क्या है √7 और ए सी की वैल्यू क्या है 4। नाउ 10a, थीटा हमारा सेम है तो बेस और परपेंडिकुलर हमारा सेम ही रहेगा। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा BC है और बेस हमारा क्या है AB। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखी है, गिवन है क्वेश्चन में 3, और AB की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी है √7। यूजली हम अंडर रूट नीचे नहीं रखते हैं तो हम क्या करेंगे अंडर रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आ गई 3√7/7। ये आपकी 10a की वैल्यू है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन 4। 15 cot a हमें क्या दे रखा है 8। पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। cot a इज इक्वल्स टू 8/50। ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं, ये इसको हम नीचे लेके चले जाएंगे तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, हमारा जो थीटा ए जो है वो हमारा थीटा है, तो हम एक ट्रायंगल दोबारा कंसीडर करते हैं। ये भी 90 डिग्री है, ये हम ए मान लेते हैं, ये बी, ये सी, ये हमारा थीटा है, मतलब यही हमारा एंगल है। cot a इज इक्वल्स टू 8/5। cot a क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस यहां पे क्या है ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है यहां पे बी सी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू है हमारे पास 8, बी सी की वैल्यू क्या है 15। अब हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम वंस अगेन। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 8, इसका स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू दे रखी है इसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 289, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 17 यूनिट्स। अब हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई है किसी भी ट्राइंगल के। हमें क्या करना है साइन ए और सेक ए निकालना है। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। BC की वैल्यू क्या है हमारे पास 15, और AC की वैल्यू हमने अब निकाली है 17। अब हम निकालेंगे सेक ए। सेक ए क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी 17, और बेस क्या है हमारा 8, तो हमारी सेक ए की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 डिस्कस कर लेते हैं। गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब यही हुआ हमें sec थीटा की वैल्यू निकाल दे रखी है, हमें sin थीटा निकालना है, cos थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है, cosec थीटा निकालना है, और cot थीटा निकालना है। गिवन हमें ऑलरेडी है sec थीटा, तो sec थीटा को हम लिख लेते हैं sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। इसको हम क्या लिखते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। दोबारा एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ए बी सी, ये 90 डिग्री है। थीटा हमारा मान लो यहाँ पे है, थीटा हमारा यहाँ पे है, तो ए बी हमारा बेस होगा, बी सी हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ए सी हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। तो 13 ये है हाइपोटेन्यूज हमारी, और बेस क्या है हमारा 12। अगर हम BC की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमारी परपेंडिकुलर है, तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दोबारा हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमें गिवन है 13 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हमें है दे रखी है 12 इसका स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। 13 का स्क्वायर इज 169, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। 169 माइनस 144 is 25 is equals to BC square. Now the value of BC is 5 units. कोई यूनिट नहीं दे रखी है हमें तो हम सीधा ही डायरेक्टली यूनिट्स लिख देंगे। हमारे पास तीनों साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आ गई हैं। अब क्या करेंगे हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू perpendicular upon base, sorry, perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular upon hypotenuse, which means perpendicular is BC, hypotenuse is AC. BC की वैल्यू हमारी ऑलरेडी आ गई है 5 और hypotenuse की वैल्यू है हमारी 13। cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है यहाँ पे ए बी है, हाइपोटेन्यूज हमारी फिर क्या है ए सी। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 12 और ए सी की वैल्यू क्या है हमारी 13। अब tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है हमारा AB। सो द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज 5/12। अब हमारे पास 1, 2, 3 और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए हैं। अब हमें निकालना है cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल होता है sin थीटा का, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 13/5। और cot थीटा निकालना है। cot थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल होता है किसका tan थीटा का, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 12/5। इन सब क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको दो साइड दे रखी होंगी, आपको थर्ड साइड निकालनी है और उसके बाद साइन थीटा की आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कैसे लिखते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, वो आप एक बार याद कर लेना। याद कर लोगे तो क्वेश्चंस बहुत इजीली निकल जाएंगे। उसके बाद आपको थीटा मैंने बता ही रखा कैसे एनालाइज करते हैं। थीटा निकालो, वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। सो दीस आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज for question number 5. Now we will be proceeding towards the next question. Question number 6, angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B. Then show that angle A is equals to angle B. इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुके हैं जिसमें cos की जगह पे खाली sin था। So इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैं अलग मेथड से करवाऊंगा। अगर आप उस वाले क्राइटेरिया से भी कर सकते हैं ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके, तो उससे भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर हो जाएंगे। मान लेते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है, 90 डिग्री पे सी है। अब थीटा अगर यहां पे है तो यहां पे जाके बैठ जाओ। cos A इज इक्वल्स टू, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा AC, हाइपोटेन्यूज है AB। cos B यहां पे थीटा हो गया, आप यहीं पे जाके बैठ जाओ। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। सो बेस cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमारा बेस हो गया है BC अपॉन AB। गिवन क्या है cos A इज इक्वल्स टू cos B। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB।
इसको हम AC इज इक्वल्स टू BC भी लिख सकते हैं, इसको हम एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C भी लिख सकते हैं। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C हमने क्यों लिखा? एक थ्योरम थी, एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। ठीक है, ये थोड़ा सिंपलेस्ट था। अगर आपको लेंथी प्रोसेस करना है, पहले आपको सिमिलैरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, दो ट्राइंगल कंसीडर करने पड़ेंगे, फिर उसकी सिमिलैरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप क्या कर दोगे, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। वो मेथड से भी आप कर सकते हैं, और उसमें SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Let us now proceed to example 7. If cot theta is equals to 7 upon 8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Second part is cot square theta. Cot theta की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, सिंपली इसको तो ऐसे निकाल लेते हैं, 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर करते हैं, दैट इज 49 अपॉन 64. So the B part is already complete. Now let us proceed for the first part. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये A प्लस बी, ये A माइनस बी, A प्लस बी, A माइनस बी, A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी सेम रहेगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने इस नोटेशन जो थी इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं, ए बी सी, थीटा यहीं पे है, ये 90 डिग्री, ठीक है। कॉट थीटा हमें 7 अपॉन 8 दे रखा है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8 मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, विच मींस BC अपॉन AB। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC की वैल्यू है 7, AB की वैल्यू है 8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी, √113 यूनिट्स। यूनिट्स हमेशा लिखना, अगर कुछ नहीं दे रखा होगा तो, नहीं तो एग्जामिनर हो सकता है आपके मार्क्स डिडक्ट कर ले, 0.5 मार्क्स। अब हमारे पास AC की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई √113, BC की वैल्यू है 7 और AB की वैल्यू है हमारे पास 8। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। परपेंडिकुलर आ गया हमारा 8, AC हमारा है √113। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा BC, हाइपोटेन्यूज है AC। BC की वैल्यू है 7, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, या फिर AC की वैल्यू है √113। सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, 1 माइनस 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 64, 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113, और यहाँ पे 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब क्या करते हैं, इस पार्ट का हम यहाँ पे पहले एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया आपका 113 माइनस 64
अपॉन 113, 113 माइनस 49, 113। ये पार्ट को जब मैं ऊपर भेजूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आएगा हमारा 49, 13 माइनस 4 इज 9, हियर यहाँ पे हम क्या करेंगे 39 माइनस 4 इज 9 और उसके बाद ये आ जाएगा 49, फिर हमारा 13 माइनस 9 इज 4 और ये आपका आ गया 64। ये आपकी वैल्यू आ गई है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। इफ यू आर लाइकिंग this video, please do not forget to share and subscribe, and if you have any queries with respect to any of the topic of class 10th, आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, और what you can do is ask queries कर्तव्य @gmail.com, ये मेरी अपनी email ID है, and I will try to respond you guys within 24 to 48 hours. Now let us proceed to question number 8. Question number 8. If 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not. सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा गिवन है 3 cot A is equals to 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, cot A is equals to 4 by 3, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने करा था। cot A हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ए बी सी, थीटा हमारा यहीं पे है, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए ये 90 डिग्री है। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसमें। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ए बी की वैल्यू क्या है, बेस हमारा क्या है 4, परपेंडिकुलर हमारा क्या है बी सी जो हमारा है 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ए सी की वैल्यू आ गई आपकी 5 यूनिट्स। हमें तीनों साइड पता लग गई हैं, परपेंडिकुलर है हमारा 3, हाइपोटेन्यूज है हमारा 5 और बेस है हमारा 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, tan a की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर पहले tan a की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan a हमारा क्या होगा, cot a का रेसिप्रोकल होता है, तो cot a है हमारा 4/3, तो tan a हो गया 3/4। अब cos a की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos a क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकाली है अभी 5। अब sin a की वैल्यू निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी है राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गई तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और अगर नहीं आई तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, 16 एलसीएम लेंगे, 16 माइनस 9 अपॉन 16,
फिर ये आ गया आपका 16 प्लस 9 अपॉन 16। ये 16 और ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 माइनस 9 इज 7 और 16 प्लस 9 इज 25। ये हमारी क्या वैल्यू आ गई, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की। हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, साइन की वैल्यू है हमारी 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। ये क्या आ गई, 16 माइनस 9 इज 7। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू भी आ रही है 7 अपॉन 25 और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की भी वैल्यू आ रही है 7 अपॉन 25। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। Now let us proceed to the next question. In triangle ABC, right angled at B, if tan A is equals to 1 by root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C. And second part is cos A cos C minus sin A sin C. सबसे पहले ट्राइंगल एक बनाते हैं। 90 डिग्री है B पे, तो ये B हो गया, ये हमारा हो गया A, B, ये हो गया हमारा C। tan A की वैल्यू हमें दे रखी है 1 by root 3। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A क्या है हमारा 1 by root 3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा थीटा है, ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया हमारा रूट 3, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1। सेम अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सॉरी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू रूट 3 दे रखी है, BC की वैल्यू है आपके पास 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर 1, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 4, सो AC की वैल्यू आपकी आ गई 2 यूनिट्स। AC की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, इसका मतलब हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गई, दैट इज 2। अब A वाली टर्म्स जो है इसमें वो निकाल लेते हैं। साइन A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी 2। अब कौन सी A वाली टर्म है, cos A। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा अंडर रूट 3, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी 2। अब क्या करेंगे हम, थीटा यहां पे कंसीडर कर लेंगे, तो साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन C क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारी हो गई हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट 3 अपॉन 2। cos C निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो गया 1, हाइपोटेन्यूज क्या हो गई हमारी 2। फर्स्ट पार्ट, साइन A cos C, साइन A cos C, साइन A की वैल्यू है 1 by 2, cos C की वैल्यू है 1 by 2, प्लस cos A की वैल्यू है रूट 3 by 2, साइन C की वैल्यू क्या है रूट 3 by 2, 1 by 2 इंटू 1 by 2 1 by 4, प्लस रूट 3 by 2 इंटू रूट 3 by 2, ये आपका हो गया 3 अपॉन 4। एलसीएम लेंगे 4, ये आ गया आपका 4, 1 प्लस 3 इज 4, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1। सेकेंड पार्ट, cos A cos C, cos A की वैल्यू है रूट 3 by 2, cos C की वैल्यू क्या है 1 by 2, माइनस साइन A साइन C, साइन A की वैल्यू है हमारी 1 by 2, साइन C की वैल्यू है हमारी रूट 3 by 2, रूट 3 by 2 इंटू 1 by 2 रूट 3 by 4, माइनस 1 by 2 इंटू रूट 3 by 2, ये आपका आ गया रूट 3 by 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू आ गई हमारी 0। ठीक है, समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equals to 25 and PQ is equals to 5 cm. Determine the values of sin P, cos P and tan P. इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर लिया है, उसी पे बेस है, बस वहां पे माइनस था यहाँ पे,
प्लस हो गया है। ट्राइंगल एक कंसीडर कर लेते हैं पी क्यू आर, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। पी आर प्लस क्यू आर क्या दे रखा है 25, और पी क्यू आर क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर। क्या करते हैं हम, हमें तीनों एंगल तीनों साइड्स हमें निकालनी है ताकि हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकाल पाए। तो हम एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और यहां पे पी आर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5 सेंटीमीटर, प्लस क्यू आर की वैल्यू नहीं है तो हम क्यू आर स्क्वायर लिख देते हैं। ए प्लस बी या ए माइनस बी की आइडेंटिटी आप लगा दो, सेम ही आइडेंटिटी होती है, बस माइनस का डिफरेंस होता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 25 का स्क्वायर प्लस का क्यू आर का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो गया आपका 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये क्यू आर स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 625, अब मैं इसको इधर ले जाता हूं, ये वाली टर्म को उधर ले जाता हूं। 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू, ये इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 50 क्यू आर। ये आपका आ गया 600 इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर। 0 से 0 कट गया, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 12। सो क्यू आर की वैल्यू जो हमारी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। क्यू आर की वैल्यू जो हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई, पी आर की क्या आ जाएगी 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई है। चलो यहाँ पे हम वैल्यू ही पुट कर देते हैं। क्यू आर की वैल्यू है 12, मतलब हमारा क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारी 12, पी आर की वैल्यू आ गई हमारी 13 और पी क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 5। साइन पी, कॉस पी, टेन पी, थीटा यहाँ है, यहां पे जाके बैठ जाओ, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर। क्यू आर हो गया 12, पी आर हो गया हमारा 13। कॉस पी क्या हो गया, कॉस पी की वैल्यू आ गई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा पी क्यू और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी पी आर। पी क्यू आपका 5 है, पी आर फिर आपका 13 है। 10 पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू आर अपॉन पी क्यू 12 अपॉन 5। जब आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं एक बार दोबारा। 10 पी की वैल्यू हमारी ये आ गई। अगर मैं 10 पी को साइन पी अपॉन कॉस पी लिखता हूं तो देखते हैं कि 12 अपॉन 5 वैल्यू आती है या नहीं आती है। साइन पी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 12 अपॉन 13। कॉस पी की वैल्यू है 5 अपॉन 13। क्या करेंगे 12 अपॉन 13 इंटू 13 अपॉन 5, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो 12 अपॉन 5। ये सेम वैल्यू आई है ये, तो इसका मतलब क्या है कि टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो सोल्व करते हैं। मेनली वो फिल इन द ब्लैंक्स है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसको और जस्टिफाई भी करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्वेश्चन 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला पार्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1।
क्या ऐसा है या नहीं है। पहले एक ट्राइंगल देख लेते हैं, ए बी सी। tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेस हमारा हो गया 1, हाइट हो गई हमारी 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी हमारी, इसमें हाइपोटेन्यूज हो जाएगी हमारी √2। तो tan a क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1, ये आ गया 1। तो ये पूछ रहा था वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, सो द आंसर इज नो। यहाँ पे हमारे tan a की वैल्यू जो आ गई है 1 है, 1 इज नेवर लेस देन 1, 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट पार्ट है sec a इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। इसमें भी एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। sec a, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या दे दिया हमें 12, बेस क्या है 5। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे, ए बी सी कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ए बी को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी 5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, इसको इधर ले आएंगे -25 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। इसकी वजह इसको सॉल्व कर लेते हैं, 14 - 5 इज 9, 13 - 2 इज 11 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू 119। ये एक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं ये एक पाइथागोरस थ्योरम के लिए वैलिड है। तो sec a क्या होगा, 112/5 होगा किसी भी वैल्यू थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए। ये हमारा क्या था, फॉल्स था, और ये था हमारा ट्रू। cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a, cos a is the abbreviation used for cosine of angle a, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। और cosecant किसके लिए है, cosec के लिए। तो ये भी हमारा हो गया फॉल्स। अब एक और पार्ट, cot a is equals to product of cot and a। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था cot हमारा एक फंक्शन होता है, और a हमारा जो है एंगल होता है। तो हम इसको कभी भी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, तो ये भी हमारा हो गया फॉल्स। sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब sin थीटा क्या होता है, sin थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो परपेंडिकुलर हमारी 4 है और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 3 है। क्या ऐसा पॉसिबल है, हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ी होती है, लेकिन इस केस में हाइपोटेन्यूज छोटी है और परपेंडिकुलर हमारा बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी फॉल्स है। सो द एक्सरसाइज 8.1 is completed. In the next video we will be discussing about the trigonometric ratios of specific angles, उसकी एक्सरसाइज करेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे।